Okay, so start with HTML tables. So HTML में we use tables to display tabular data. So what is the tabular data in HTML? Just say this is a list जो हम left side पे देख रहे हैं. The top menu it's a list. लेकिन suppose we want this type of information जिसमें एक key then उसकी value then key then values को describe किया जाए. तो ये कौन सा means pattern होगा मेरा? So this is the table. So table में we got rows and columns. So we have rows, जैसे ये rows हैं, and हर row में मेरे पास we got two columns. So in this columns, these are columns and these are heading columns. So इनको हम th कहते हैं. So table includes these tags: table, tr, td, th, caption, call group, call, thead, tbody, and tfoot. तो चलिए, let's start with HTML table. So why we are using table? To display tabular data. So tabular data को add करने के लिए we need tables in HTML. So HTML तो table. यूजुअली इसमें कौन सी टेबल्स आती है, मतलब वो Sorry, लाइक वो वाली टेबल्स जो एक्सेल शीट में जो होती हैं, या फिर मतलब ब्लॉक्स बनाने के लिए, सेक्शन बनाने के लिए टेबल यूज it's करते same. हैं? ये वैसा ही होगा ना आपका. So you can create rows and columns. Okay. ठीक है, it's the same table जिसमें हम rows and columns use करेंगे. So title is HTML table. ठीक है. So this is my title today. So now let's start with the table. So table का parent tag होता है table tag. So what is table? Table is the parent of all tables. तो टेबल का सारा कंटेंट किसमें आएगा? विद इन दिस टेबल. तो सी बाय डिफॉल्ट देयर इज नो बॉर्डर एंड नो बैकग्राउंड, डिफॉल्ट बैकग्राउंड ऑफ टेबल. सो टेबल का कोई बॉर्डर बैकग्राउंड नहीं है. इनसाइड टेबल वी हैव टू बिल्ड रोज. तो टेबल में सबसे पहले क्या आता है? टी आर. तो टी आर क्या है? टेबल रो. दिस इज माई फर्स्ट रो एंड देन इन दिस रो टू एड डेटा वी यूज टी डी. सो दिस इज माई टी डी. जैसे सपोज दिस इज column 1, this is column 2, this is column 3, and this is column 4. So we have one row with 4 columns. So there is no default border of table. In HTML4 and XHTML, there was a border attribute. So border 1 and you'll get a border. But this is not allowed in HTML5. So 5 में हम border attribute use नहीं करते. So for that, what to do? Use CSS and table को border. It's 1 pixel and solid style. बट ये बॉर्डर किसका है? ओनली टेबल. टेबल का। वी ऑल्सो वांट कि टेबल की टीडीज को भी बॉर्डर मिले. सो कॉमा टीडी. सो वी यूज ग्रुपिंग यूजिंग टीडी एंड नाउ वी गॉट द सेम बॉर्डर. ठीक है. सो नाउ दिस इज द टेबल, वन रो एंड 4 columns. So now copy the row and paste for more rows and more columns. ठीक है. See, so we got 4 rows and 4 columns. So this is a simple table in HTML. But there is a difference. We have to use other table elements. तो table में और भी elements हैं that we need to do. तो चलिए start करते हैं HTML table. Before 2005, even the whole website, so it's a interesting fact कि किसी टाइम पे पूरी की पूरी websites जो थी, they are built using table element. जबकि modern जो sites हैं, they are built using div और HTML5 semantic elements. तो modern जो sites हैं, ये div पे बनते हैं divisions and we use CSS to for the layout. लेकिन किसी टाइम पे तो पूरी full website was built using table. So but it's very old time now, approx 10 to 15 years back. चलिए. So table, sometimes table at one time table was used to design the layout, but it's not required now. So we have more better elements. So table may we got minimum 1 rows and at least 1 column. So tr with one table with 1 tr 1 td is enough for a table. Inside table we cannot use directly any other element. जैसे within table we have only trs. So now let's inspect this table and see the in the DOM. So this is my table and I'll open my table. Now inside table, see there is a new element. तो ये कौन सा element आ रहा है आपका? It's T body. So basically your rows are inside T body. So but in our source code rows कहाँ पे है? Inside table है. So in our source code rows are inside table, but in our DOM rows किसके अंदर है? T body के अंदर. So basically these TR जो TRs हैं ये table की नहीं T body की child है. See, but in our source code TR जो है वो table की child है. So there is a difference in DOM. तो DOM में यहाँ पे एक difference आता है. Like if I forget to close the H1, तो
आपके सोर्स कोड में H1 क्लोज नहीं है, लेकिन डॉम में देख रहे हो, इन द डॉम टेबल के बाद H1 क्लोज हुआ, बट इसका ड्रॉबैक है टेबल भी हेडिंग बन गया, सो H1 क्लोज करेगा बट ये डॉम में हो रहा है, तो सेम इट्स इन द डॉम. सो वी हैव सम अदर टेबल एलिमेंट्स जिनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लाइक टी है, टी बॉडी एंड टी फुट एंड हाउ टू यूज देम. सो टेबल में मिनिमम एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3. फर्स्ट टेबल, देन टी आर एंड देन टी डी. बट टोटल टेबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सी दिस. So first is table, which is the root, जो table का parent है. Then tr, and then within tr we have td. We have one more, that is th. ये होता है table headings के लिए. Then we have caption, call group, call, head, tbody and tfoot. And then we have some attributes of table. Width, height, align, vline, they all are removed in HTML5. We only need to use call span and row span. तो ये 5 में remove नहीं हुए. Remaining all are removed in HTML5. ठीक है? So let's start with the table element. So table में table, tr and td we have already used. So now start with th. So let's say my first row is for headings. Like, so I'll use th. Why th? This is table heading. So in table heading we have serial number, name, age, or phone, and let's say postal. Okay, so we have this information. So we have one table with th. Now there's no border for th, so th में border नहीं आएगा, so we have to use one more grouping th. ठीक है, so we have one row with 5 columns. Again, see the DOM, ये सारा डेटा किसके अंदर आ रहा है? Inside table body. Now we need one more row. और इस रो में कितने columns होंगे? tds कितने होंगे? We need 5. First होगा serial number, let's say 1. Then name, I type ABC. Then age, let's say 22. Then phone, let's say this dummy. And also let's say Vanessa. So we got some dummy content. Now ये first columns किसके हैं? Heading के, and second column किसके हैं? Datas के. So is there any difference between TH and TD? Yes, sir. Yeah. So TH are table headings. So by default वो कैसी हैं? They are a bold and center line. So TH की properties क्या हैं? Table headings. They are bold and center aligned. TH, जबकि TD कैसी है? Normal and left aligned. ठीक है? But still they are both inside T body. तो क्या दोनों T body में है? So now we use for, so ये जो डेटा है मेरा, ये बॉडी का पार्ट है, बट ये तो हेडिंग्स, इस रो में कौन सा डेटा है? बॉडी डेटा या हेडिंग डेटा है? हेडिंग. सो वी यूज टी हेड. इस रो की ग्रुपिंग होती है टी हेड में. ठीक है, इन रोज की अदर्स की ग्रुपिंग किसमें होगी? टी बॉडी में. इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस, देयर इज नो वैलिडेशन एरर. आई जस्ट ब्यूटीफाई माय कोड. ठीक है, तो सी टेबल में वन टी हेड में वन टी आर, बट टी इन दिस टी बॉडी वी कैन ऐड मोर रोज. तो फर्स्ट रो हमने ऐड कर दी, बट इससे कोई अपीयरेंस में डिफरेंस नहीं है. नाउ लेट्स ऐड सम मोर डेटा. सो फर्स्ट रो के बाद इन द सेकेंड रो, टी बॉडी के सेकेंड रो में 02 EQR, age 21, let's say it's 99 something, and it's this. Okay, so we got 0 to second row. So यहाँ पे the data is structured now. See, we have T head जिसमें 1 row है. We have T body जिसमें कितनी rows हैं हमारी? 2. So all the data, जो भी students का information होगी वो कौन से उसमें आएगी? वो सारी T body में आएगी. So T head में सिर्फ क्या आएगी? Row वाली headings. T body में क्या आएंगी? Data वाली rows. So इसमें कौन सी रो आएगी? Heading वाली. और इसमें कौन सी rows आएंगी? Body वाली. तो T head and T body का काम क्या है? टू ग्रुप रोज. तो रोज की ग्रुपिंग करने के लिए काम करेगा. सो इवन इन CSS, जब आप CSS यूज करोगे, अगर आपको इनका कलर चेंज करना है तो आप कौन सी रो का कलर चेंज कर सकते हो? टेबल टी बॉडी की TD कलर रेड. सी CSS में एक ही बार में ये कलर चेंज हो जाएगा. सो दे आर इन अ ग्रुप. तो ग्रुप का फायदा क्या है? CSS में वी कैन इजिली चेंज द स्टाइलिंग. सो टेबल में दीज ऑल एट्रीब्यूट, जैसे कि बॉर्डर एट्रीब्यूट्स, बॉर्डर एट्रीब्यूट, और सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, सी स्टिल यू कैन सी द हिंट, और BG कलर,
दे ऑल आर रिमूव्ड इन HTML5. तो ये सारे एट्रीब्यूट आपके 5 में रिमूव्ड हैं, वी कैन नॉट यूज. सो हमने टेबल यूज किया, वी गॉट TR, हमने TD यूज किया, TH यूज किया, देन वी नीड टू यूज टेबल कैप्शन. कैप्शन टेबल में सबसे पहले आएगी. दिस इज माय स्टूडेंट्स डेटा. तो टेबल की कैप्शन क्या है? स्टूडेंट्स डेटा. सी स्टूडेंट्स डेटा कैसे आ रहा है? तो ये टेबल की विड्थ के सेंटर में हमेशा आएगा. तो जितनी भी टेबल की विड्थ होगी, सी टेबल की, सो टेबल का डिस्प्ले कैसा है? इज इट ब्लॉक और इनलाइन या डिस्प्ले टेबल? ठीक है. सो नाउ वी हैव वन मोर टेबल केसेस डिस्प्ले. ये है टेबल. तो जैसे आपने CSS में डिस्प्ले देखे, ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है, नन होता है, और लिस्ट आइटम होता है. तो वी हैव वन मोर CSS डिस्प्ले, ये है टेबल. डिस्प्ले टेबल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? सो सपोज वी हैव वन मोर टेबल with 2 rows and some dummy data. तो सी नेक्स्ट टेबल कहाँ आ रहा है? सेम रो, नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो. सो दैट मीन्स टेबल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? विद द नेक्स्ट रो. तो टेबल हमेशा नेक्स्ट रो. लेकिन इस टेबल की विड्थ कितनी होगी? कम. इसकी विड्थ कम है, तो इसकी कैप्शन इस विड्थ के सेंटर में आएगी. तो टेबल की विड्थ भी ऑटोमेटिक है और टेबल की हाइट भी ऑटोमेटिक है, बट टेबल हमेशा न्यू रो से स्टार्ट होगा. ठीक है. तो टेबल की विड्थ कितनी है? ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग. सो विड्थ किस पे डिपेंड करेगी टेबल की, और हाइट किस पे डिपेंड करेगी? विड्थ किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ कॉलम्स पे. और हाइट किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ रोज पे. सो इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ रोज, टेबल की हाइट बढ़ जाएगी. नाउ व्हाई टेबल? टेबल हमेशा ब्राउजर पे स्लो रेंडर होते हैं. द रीजन इज कि व्हेन योर ब्राउजर सी हेडिंग, वो हेडिंग को डिस्प्ले करता है. बट व्हेन योर ब्राउजर सी योर टेबल, तो वो क्या करता है? इस पूरे फर्दर कंटेंट को ब्लॉक कर देता है. मीन्स ब्राउजर की स्क्रीन पे दिखाता नहीं है. फर्स्ट देयर इज अ कैप्शन. लेकिन वो कैप्शन कितनी विड्थ के सेंटर में होगी? तो जब टेबल लोड हो रहा है, क्या ब्राउजर को पता है कि कैप्शन कहाँ सेंटर में कहाँ आएगा? यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? तो जब टेबल लोड हो रहा है, क्या ब्राउजर को पता है कि कैप्शन का मतलब इतना तो पता है टॉप पे आएगा, लेकिन सेंटर में कहाँ आएगा क्या ये पता है? नहीं, क्योंकि ये कब डिसाइड होगा? जब टेबल लोड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम पे. अब ऐसा भी होता है कि दैट यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रोज कम है, आगे जाके हमने कॉल स्पैन रो स्पैन का यूज करके नंबर ऑफ डेटा को इंक्रीज कर दिया. तो जब तक आपका टेबल क्लोज नहीं होता, ब्राउजर को पता नहीं चलेगा कि दैट टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, टेबल की विड्थ कितनी है, टेबल की हाइट कितनी है. तो दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक कि पुरानी जो साइट्स थी वो लोड होने में हमेशा स्लो चलती थी. तो पुरानी साइट्स, ऑल साइट जो टेबल पर बनती थी, दे आर स्लो. और रीजन क्या था स्लो होने का? आपका जो इतना कंटेंट है, सपोज जैसे ये आपका टॉप 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में लोड हो जाता है. बट आफ्टर दैट व्हेन योर ब्राउजर सी देयर इज अ टेबल, ये पूरा का कंटेंट तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक पूरा का पूरा टेबल ब्राउजर पे रेंडर नहीं होगा. ठीक है. तो टेबल इसलिए स्लो होते थे. बट नाउ हम लोग मॉडर्न लेआउट बनाते हैं डिव से, डिवीजन से. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिवीजन? यहाँ से अगर डिवीजन स्टार्ट हुई और डिवीजन में सब डिवीजन है, ब्राउजर उनके कंटेंट्स को ब्लॉक नहीं करता. तो ब्राउजर क्या करेगा? इफ ही सीज अ डिवीजन और उसके अंदर हेडिंग है, वो उस हेडिंग को शो कर देगा जबकि डिवीजन अभी क्लोज नहीं हुई. सी सेम लाइक बॉडी. बॉडी ओपन हो गई है और बॉडी क्लोज सबसे एंड में हुई है. बट क्या बॉडी की क्लोजिंग तक ये कंटेंट जो होता है वो ब्लॉक होता है, या वो साथ साथ एक एक करके डिस्प्ले होता रहता है पेज पे? ठीक है. लेकिन टेबल के केस में ऐसा नहीं होता. तो टेबल हमेशा, जब तक टेबल क्लोज नहीं होगा तब तक ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होंगे. सो इट्स बेटर कि हम लोग इसकी जगह डिव बेस्ड लेआउट जो है वो बनाते हैं आज की डेट में. प्लस टेबल की जो विड्थ है ये रिस्पॉन्सिव पे प्रॉब्लमेटिक होती है. सी ये अब सपोज आपका टेबल हाफ विंडो तक होता, तो ये मोबाइल पे क्या होता? ये मोबाइल की विंडो पे क्या हो जाएगा? ये ओवरफ्लो हो जाएगा. सी, तो मोबाइल की विंडो पे ओवरफ्लो हो जाएगा. सी लेट्स से वी हैव मोर टी हेडिंग्स, तो ये टेबल ऐसा हो जाएगा. नाउ सी, ऑल्दो इट्स अनस्ट्रक्चर्ड, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है. सी दिस मोबाइल, ऑलरेडी वी आर यूजिंग दिस मेटा व्यू पोर्ट. तो मेटा व्यू पोर्ट से देख लो ये प्रॉपर रेंडर नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कंटेंट ज़्यादा है, तो ये ओवरफ्लो हो रहा है. तो टेबल क्या हो रहा है हमारा? ओवरफ्लो. सी टेबल कितने साइज का आ रहा है? 549, जबकि स्क्रीन कितनी है iPhone 6 की? 375. तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारी विंडो पे?
ओवरफ्लो, बॉडी छोटी है लेकिन कंटेंट बॉडी से बाहर ओवरफ्लो हो रहा है. This is why we are using this viewport. Now let's add some more data in this. So we add some more dummy data. So let's say we have one more row जिसमें student 3 name is XYZ and age is let's say 22, phone number let's say it's same, नहीं it's different, and hostel is same. तो if hostel is same तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोज पेन या कॉल्स पेन का यूज कर सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, वी कैन रिमूव दिस LBS. तो वन सेल जो है वो आपकी रिमूव हो गई है. सो दिस सेल इज रिमूव. नाउ वी कैन यूज कॉल्स पेन एंड रोज पेन. तो कॉल्स पेन एंड रोज पेन एट्रीब्यूट से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड सम मोर डेटा. बट बिफोर दैट लेट्स ऐड द लास्ट रो जो है हमारी टी फुट. तो टेबल फुटर में वी हैव वन रो. तो ये कौन सी रो है हमारी, टी फुट यानी कि टेबल की फुटर की. तो इनसाइड फुटर हमारे पास लेट्स से ओनली 2 टीडीज हैं. लेट्स से राइट नाउ वी डोंट नीड दिस. तो यहाँ पे LBS है. तो दिस इज द लास्ट ईयर. इसमें है टोटल एंड द नेक्स्ट टोटल क्या है आपका 03 मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके इट्स 3. तो मैनुअली मुझे ऐड करना है 3. बट इन टी फुट मुझे कितनी रोज की रिक्वायरमेंट है. सो इन टी फुट हमारी रोज कितनी है, ओनली 2, जबकि बाकी में कितनी है 5. कैन वी यूज दिस, इसको इग्नोर कर दें. इज दिस अलाउड इन टेबल. टेबल होता है फॉर स्ट्रक्चर डेटा. सो दिस इज नॉट अलाउड इन टेबल. सो सी यू हैव टू यूज 5 कॉलम्स. आपको 5 कॉलम्स यूज करने पड़ेंगे. इफ यू आर नॉट यूजिंग 5 कॉलम्स, सी वैलिडेशन में एरर आ जाएगा. चेक योर फाइल as per 5 standards. See, the table row was 2 column wide, which is less than the column count, and the exact column count कितनी है हमारी total, that is 5. So that means ये कितनी wide होनी चाहिए आपकी 5. तो यहाँ तो 3 empty देने पड़ेंगे. अब वैलिडेशन एरर नहीं आएगा. बट इससे डिजाइन भी मीन्स आपका सही नहीं आएगा. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव दीज 3 एंड वी कैन स्पैन दीज 2 कॉलम्स. हम जो ऑलरेडी टीडीज हैं इनको स्पैन कर सकते हैं. तो स्पैन हम इनको करेंगे एक्स एक्सिस पे. सो वी हैव वन एट्रीब्यूट दैट इज कॉल स्पैन. दिस इज अलाउड इन HTML5. तो टेबल में वी कैन यूज कॉल स्पैन एंड कॉल स्पैन. तो कॉल स्पैन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1, मीन्स हर कॉलम एक कॉलम में स्पैन होता है. बट आई कैन स्पैन टोटल इन 2. टोटल को मैं 1 से 2 कर दूंगा. सो नाउ इट्स 3. तो सी टोटल कितने में स्पैन हो गया 3 में. तो नाउ 03 के लिए फिर आपको कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि स्ट्रक्चर हो जाए प्रॉपर. तो नाउ द सम कितना हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली 5. सो नाउ यहाँ पे वैलिडेशन एरर नहीं है. देयर इज नो वैलिडेशन एरर नाउ. क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है. बट अगर हमने 3 कर दिया तो सी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा गैप दिख रहा है. तो यहाँ पे एम्प्टी रो है. सी द कॉलम 6 established by TD has no cell beginning in it. तो यहाँ पे भी एक वैलिडेशन का एरर आ गया. सो मेक श्योर आपकी कॉल स्पैन का सम कितना होना चाहिए, should be 5. आप टोटल को 3 कर सकते हो तो देन ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 2 एंड बाय डिफॉल्ट दे आर 1 1. ठीक है. सो इट्स अप टू यू आप इसको कैसे स्पैन कर रहे हो. तो ये आपकी मर्जी है आपको टोटल एंड इसकी वैल्यूज को कैसे स्पैन करना है. सेम हम लोग रो स्पैन यूज करते हैं. सो फॉर द होस्टल, जैसे सपोज ये दोनों एक ही होस्टल में है, सो आई रिमूव दिस LBS. नाउ LBS रिमूव कर दिया तो दिस सेल इज एम्प्टी. इसको 2 कॉलम्स जो है वो स्पैन कर सकते हैं. एक तो फोन नंबर कर सकता है. तो अगर फोन नंबर स्पैन करेगा तो कैसे करेगा, यूजिंग कॉल स्पैन. या फिर ये वाला डेटा कर सकता है. तो हमें LBS को यहाँ स्पैन करना है. तो ये जो स्पैन था ये वाला, दिस इज कॉल स्पैन. ये स्पैन कौन सा होगा, दिस इज रो स्पैन. रो स्पैन बाय डिफॉल्ट 1 होता है. लेट्स से रो स्पैन इज 2. तो ये 2 को स्पैन करेगा. बट डोंट यूज 3 क्योंकि ये वैलिडेशन में एरर दे देगा आपको. नाउ अगेन इट्स प्रॉपर स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये अगेन क्या हो गया हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया. सो वी यूज कैप्शन. नाउ यूज दिस. हमने टी हेड यूज किया, टी बॉडी, टी फुट एंड these two are again there, call group and call. So call group and call are not more used in HTML5 में ज़्यादा यूज हम नहीं करते इनको. Let's see इनका रोल क्या है.
सर रो स्पैन कॉल स्पैन में फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है सर। सॉरी, रो स्पैन कॉल स्पैन में, हेलो हेलो, यस सर। यस पुनीत, सर रो स्पैन कॉल स्पैन में फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है सर। कौन सी वैल्यू? फ्लोट वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, फ्लोट वैल्यू कभी नहीं आती इसमें, ठीक है। ओके, वी गॉट अ कॉल ग्रुप। तो कॉल ग्रुप मतलब द ग्रुप ऑफ कॉलम्स, और इसका चाइल्ड होता है कॉल। कॉल अनपेयर एलिमेंट है तो उसकी क्लोजिंग नहीं होगी। सो हम लोग यहाँ पे जैसे हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव, हमारे पास टोटल कॉलम कितने हैं? 5। तो हम इसको ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे ये 3 एक ग्रुप में, ये 2 एक ग्रुप में। तो 2 कॉल और इसको स्पैन किया 3 और इसको स्पैन किया 2, तो इससे ये ग्रुप हो जाएंगे। बट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस ग्रुप? यूजिंग सीएसएस हम इनको कॉमन कलर्स या बैकग्राउंड दे सकते हैं, जैसे फॉर दिस बैकग्राउंड इज लाइट ग्रीन, तो ये पूरे के पूरे लाइट ग्रीन आ गए। एंड इसको स्टाइल देके वी यूज बैकग्राउंड लेट्स से पिंक। और अर्लियर ये काम कौन करता था? बीजी कलर। तो स्टिल HTML4 वी यूज बीजी कलर, बट दिस इज नॉट अलाउड इन 5। तो 5 में अब ये काम कौन करेगा? CSS डॉक टाइप इज HTML5, तो यहाँ पे हम ये काम इससे करेंगे। बट द सेम थिंग वी कैन ऑल्सो यूज यूजिंग CSS3। सो दिस इज नो मोर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये काम हम CSS3 में कर सकते हैं easily. वी हैव सम far better selectors, जैसे कुछ ऐसे टेबल tr td colon nth child 1 then nth child 2 को मैंने ग्रुप किया and I change the background to red. See, तो CSS3 we have the option to make group. तो हम ग्रुप बनाने के लिए CSS3 में ये ऑप्शन कर सकते हैं। So that's why ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉलम्स की ग्रुपिंग का ही काम करते हैं, तो इतने ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होते। बट या इफ यू रिक्वायर्ड आप इसका यूज़ कर सकते हो कॉल ग्रुप्स का, बट ये हार्डली अब यूज़ होते हैं। So this is call group and call t head, t body and t foot. So यहाँ पे टेबल के चाइल्ड कितने हैं? अब टेबल के 3 चाइल्ड हैं। फर्स्ट t head 1 row, then t body 3 rows, and then one we have t foot with 1 row. ठीक है, क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू ऐड मोर डेटा, जैसे सपोज आपका एक स्ट्रक्चर डेटा और इंक्रीज होता है, एंड दैट इज नेम हॉस्टल th डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट एक में नहीं, सब में ऐड हो जाएगा। तो वी हैव टू ऐड डिपार्टमेंट, जैसे दिस इज मैकेनिकल, दिस इज CS, तो मैकेनिकल आ गया। वी गॉट मैकेनिकल CS, सपोज इसका भी मैकेनिकल था, तो रो स्पैन 2 मैकेनिकल, यहाँ से कट करो, ऐड 1 सेकेंड, ये हमने कहाँ ऐड कर दिया? आफ्टर फोन नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे मैकेनिकल मैकेनिकल, ठीक है। दिस इज CS एंड देन अब मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। व्हाट? हमें लास्ट में वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी रो स्पैन की। तो टोटल और इसमें से किसी एक को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ नंबर ऑफ सेल्स आर, कॉलम्स कितने हो गए? 6 हो गए हैं। तो मेक श्योर अब ये 6 होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से डेटा आ जाएगा। देन हम इसको 4 एंड इसको 2 कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो एज पर माई रिक्वायरमेंट हम इसमें ये दे सकते हैं। नाउ टू चेंज द आउटर बॉर्डर, बॉर्डर कलर, ये सारे किसके काम है? हमारे CSS के। तो ये सारा काम किसका हो जाएगा? हमारा CSS का हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल इसके बाद हमेशा कहाँ से आएगा? कभी भी टेबल नेक्स्ट रो से नहीं आता, इसी के साथ नहीं आएगा। टेबल हमेशा कहाँ से आता है? नेक्स्ट, क्योंकि डिस्प्ले टेबल क्या करता है? हर टेबल को हमेशा नेक्स्ट रो से डिस्प्ले करता है, ठीक है। The final validation, there is no validation error in table. So see, table attributes. In table attributes, these all attributes are removed in HTML5. Width attribute का काम क्या था? So we are not using width now, but just for example, हम इनको यूज करेंगे, बट नॉट, हम इनको सेव नहीं करेंगे। So width 600, टेबल की width को इंक्रीज कर देता था, एंड नाउ ये काम किसका है? CSS का। हाइट, ये भी हाइट इंक्रीज करता था। अलाइन, अलाइन का काम क्या था? सेंटर में लाइन।
टू अलाइन टेबल, जैसे मैंने कहा अलाइन सेंटर, तो टेबल को सेंटर में लाएगा। मॉडर्न ये काम कौन करेगा आपका? CSS ऐड CSS करेगा। वी अलाइन क्या था? वर्टिकल अलाइन, टेबल के सेल्स को वर्टिकल या कॉलम्स को वर्टिकल अलाइन, जैसे वर्टिकली ये सेंटर में है तो इनको टॉप बॉटम ऊपर नीचे करना हो तो वी यूज वी अलाइन, तो वो वर्टिकल अलाइन होता था। बॉर्डर, आउटर बॉर्डर और बीजी कलर इनका बैकग्राउंड था। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बट नाउ डेज हम इनको भी यूज नहीं करते। तो सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग क्या है? CSS की मार्जिन एंड पैडिंग। सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, तो ये दो प्रॉपर्टीज इफ यू वांट यू कैन सी। सेल स्पेसिंग क्या करती है? सी, दिस इज डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग। तो डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग हमेशा 2 पिक्सल का गैप रहती है, तो दो आउटर बॉर्डर में और इनर बॉर्डर में 2 पिक्सल का गैप है। सो व्हेन वी यूज सेल स्पेसिंग 0, तो 0 कर दूंगा तो देखो क्या होता है, तो दोनों सेल्स के बीच का जो गैप था वो 0 हो जाएगा। सी, तो जो दो सेल्स के बीच का गैप था वो, सी, पहले इतना था एंड नाउ इट्स 0। ठीक है। सेल पैडिंग ये क्या है? सेल्स का इनसाइड गैप विच इज बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल, मैंने कहा 5, इसको इंक्रीज कर दिया। जैसे देख रहे हो टेबल इनसाइड से जो गैप ले रहा है पैडिंग वो इंक्रीज हो गई। तो पहले वो 1 थी, तो ये जो 0 था ये बॉर्डर से 1 पिक्सल इनसाइड था, इन अंदर गैप ले रहा था। नाउ इट्स 5, तो पहले 1 पे ऐसा देखेगा, 5 पे थोड़ा सा बेटर देखेगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस हो गया है। तो ये प्रॉपर्टीज अब CSS 3 में रिमूव हो चुकी हैं और इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? CSS। CSS। तो ये सारा काम CSS का हो चुका है। तो बेसिक टेबल जो है वो जस्ट एक स्ट्रक्चर है, उसको डेकोरेट करने का पूरा काम किसका है? CSS। दिस इज अ टेबल विद ओनली वन CSS प्रॉपर्टी दैट इज बॉर्डर। और अगर आपने CSS यूज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट देयर इज नो बॉर्डर इन टेबल, तो टेबल आपका बाय डिफॉल्ट इस स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है। Okay, so this is my HTML table element with rows and column. Let's see इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बचा हमारा। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, कोल स्पैन, रो स्पैन हम लोगों ने कर लिया, अलाइन कर लिया विच इज अगेन आउटडेटेड, बीजी कलर, टेबल हेडिंग्स के लिए TH। ठीक है। सो दिस इज माय HTML टेबल एलिमेंट विद ऑल द टेबल के एलिमेंट्स एंड टेबल्स एट्रीब्यूट। ओके।